करनी पड़ेगी, ठीक है. हैव अ ट्राई ऑन दोस न्यूमेरिकल्स. ओके, सो द कंसेप्ट ऑफ वेव फंक्शन सिंपली मैंने इससे पहले भी बेटा आप लोगों को बताया था कि मेरे पास ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है, दैट आई एम डिनोटिंग बाय सम ग्रीक लेटर साइ. I am denoting this wave function by some Greek letter psi, and this may be a complex quantity. Suppose a plus some iota b. Okay, तो इसके बाद अगर हम इस wave function का suppose कोई complex conjugate लेते हैं some psi star, that will be a star will be again a is real. Okay, so a star will be again a and b star will be again b. So these are the real quantities. By taking the complex conjugate of these two quantities, I will get back these two quantities, but this iota will change into minus iota and b will remain as such. So as such हमने बताया था कि आपके पास जो wave function है इसकी कोई physical significance नहीं है. The main reason is that it may be a complex quantity. So for that what we will do, we are interested in this psi square. These are the basic things. You may have touched these things in modern physics also. That is some psi star psi. Okay, just take the product of these two psi star, that is simply a minus iota b, and then psi, it is a plus iota b, and that comes out to be some sort of a square plus b square. So this whole thing is real. Okay, this whole thing is real, and this is nothing, this psi square, if we are going to find this psi square for a particle over some volume, that should be equivalent to 1. And this is the condition for normalization. That means my particle should be confined in some region. So if I have this I have some volume, okay, and my particle is within this volume, then if I will integrate, suppose this is dx, this is dy, and this is suppose dz. If I am associating some sort of wave with this particle, ठीक है, और जब मैं उस particle की probability निकालूंगा within this box, that should be 100%. Now, अब मसला ये है कि हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है, are you getting my voice clearly? आकिब, Yes, sir. स्क्रीन आ रही है बेटा? Yes, sir. So now the second part of the same thing is what are the various conditions? ठीक है. So what are the various possible conditions for a physically acceptable wave function? So the second thing is that conditions for a physically acceptable wave function. Physically acceptable wave function. क्योंकि ऐसे तो हम किसी भी वेव फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. उसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस वो वेव फंक्शन फुलफिल करनी चाहिए. So then we can say that that wave function is a well-defined wave function. ठीक है. तो इसमें एक चीज है कि मेरे पास जो पहला कंडीशन है इसका, पहला कंडीशन जो है मेरे पास वेव फंक्शन जो आपके पास होनी चाहिए, this psi it should be finite. First thing is that it should be finite. ठीक है. इसका वैल्यू कुछ इनफिनाइट नहीं होना चाहिए. That is some sort of nonsense thing. And second thing is that it should be single value. That is important. एक तो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी सिंगल वैल्यू. मतलब सपोज इफ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, आई हैव सम फंक्शन साई, ओके, एंड आई एम एज्यूमिंग दैट दिस फंक्शन साई इट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स. मतलब if I am going to plot this psi as a function of x, और यहां से मैं अगर psi square लूंगा, although psi का आपके पास कोई physical significance नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना इस पॉइंट पे. अब इंस्टेड के psi के बजाय अगर मैं psi square लिखूं, ठीक है, then that psi square I can also plot as a function of x. लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्या लिया, मैंने सपोज psi लिया. अब psi का जो प्लॉट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के हर एक वैल्यू के लिए psi का एक स्पेसिफिक वैल्यू होना जरूरी. सपोज इफ आई एम सेइंग दैट माय psi is showing some sort of behavior like this with respect to x,
मीन्स सपोज एट x इक्वल 0 psi has some value, ठीक है, एट x इक्वल 1 psi has some value, मीन्स दिस वैल्यू, ठीक है, एट x इक्वल 2 psi has this value, at x equal 3 psi has this value. So it is the value at 1, it is value at 2, it is value at 3. So what I am saying that although psi is finite, ये तो क्लियर है, लेकिन सिंगल वैल्यूड है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी एक ही वैल्यू है psi का, और पॉइंट 3 पे यानी कि x इक्वल 3 पे भी psi का एक ही वैल्यू है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे psi के बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे psi के बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। सपोज इफ आई विल प्लॉट सम psi स्क्वायर as a function of x, Inayat, are you getting wise? जी सर। So if I am going to plot this psi square as a function of x, and I assume that the graph of this psi square is like this. I'm supposing the graph of this psi square is like this. Now, what I am assuming, suppose this is the value of x equal to 1. At x equal to 1, I don't have value of any psi square. Suppose at this point, I treat this as point corresponding to x equivalent 2. So what I am saying, suppose अगर ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल 2 का, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ आ रहा है ये दोबारा इसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। उसका मतलब है कि at x इक्वल 2 psi square has how many values बेटा? 2 values. Psi square has what? 2 values। और यहाँ से मुझे पता है कि psi square हमें क्या दे रहा है? Psi square हमें दे रहा है probability of finding the particle at some specific point। अब एक ही पॉइंट पे पार्टिकल की दो प्रोबेबिलिटीज नहीं हो सकती है, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो एक ही पॉइंट पे बेटा पार्टिकल की फाइंड करने की दो प्रोबेबिलिटीज नहीं हो सकती, तो पार्टिकल तो एक सिंगल इंस्टेंट पे एक ही दफा प्रेजेंट होगा, सो वन प्रोबेबिलिटी। सो दैट इज व्हाई इट शुड बी सिंगल वैल्यूड, इट शुड नॉट बी मल्टी वैल्यूड। ओके, एंड थर्ड थिंग इज दैट, यहाँ से ही अगर मैं दूसरा पॉइंट भी लिखूंगा तो यहाँ से हमें दूसरा चीज ये भी पता चला कि आपके पास जो psi होना चाहिए, that psi should be continuous, it should not be discontinuous। Suppose if I am saying that suppose my wave function psi, I will going to plot that psi as a function of x, if my wave function is like this, और उसके बाद यहाँ पे कोई कट लगा है वेव फंक्शन, तो उसके बाद वेव फंक्शन ऐसे आ रही है। So at x equal 0, suppose at x equal 1, at x equal 2, लेकिन उसके बाद ये वाला जो पॉइंट आपको मिला, ठीक है, यहाँ पे तो वेव फंक्शन है ही नहीं, इस पॉइंट पे आपको तो वेव फंक्शन है ही नहीं। मीन्स इसका मतलब ये है कि सपोज अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, इसके साथ वेव चल रही है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, लेकिन एम्पथ क्या यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन गायब ही हो गया है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मींस यथपैट योर टाइम कपेरा इलेक्ट्रॉन, मींस ये तो कोई पैराडॉक्स सा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन यथपैट योर टाइम गॉट गुमुत बात शेयर गुमुत बे। सो दिस काइंड ऑफ वेव फंक्शन इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये बेटा आप लोग दिमाग में रख लेना ये पॉइंट्स, बिकॉज कल जाके आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, वहां पे 4 प्लॉट्स होंगे psi विद रिस्पेक्ट x, तो आपको बताना पड़ेगा कि which type of wave function is physically acceptable। So neither this wave function is acceptable, neither this wave function is acceptable, but this wave function is acceptable because it is continuous as well as single value। And third point is that जो हम already पढ़ चुके हैं, so वो मैं यहाँ पे explain नहीं करूंगा, वो ये है कि आपके पास जो psi है वो बेटा normalized होना चाहिए। वो कंडीशन हमने पढ़ी है। So normalized condition is -infinity to +infinity mod of psi square beta that is equivalent to 1. So this is valid for 3 dimensions. So if I am going for 2 dimensions, it is -infinity to +infinity psi square dx dy equivalent to 1 या dy dz equivalent to 1 या dz dx equivalent to 1, जो dimensions आपके इंटरेस्ट के होंगे। Similarly in 1D you can write -infinity to +infinity psi square dx equivalent to 1 या dy equivalent to 1 या dz equivalent to 1। मींस जहां से पार्टिकल जा रहा है उसी डायमेंशन का आप तो जिक्र करोगे 1D में, ठीक है।
तो ये वाला जो कंडीशन है नॉर्मलाइज्ड कंडीशन का, तो आगे जाके बेटा आप लोगों को ख्याल रखना है कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, कोई वेव फंक्शन ले रहे हो, ठीक है, आपको कोई वेव फंक्शन दी गई है और उसको आपको उस वेव फंक्शन के साथ काम करना है, मींस आपको उस वेव फंक्शन से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी, है। मतलब मेरे पास वेव फंक्शन है बेटा, दिस इज माय वेव फंक्शन, ठीक है, और इस वेव फंक्शन से सपोज मुझे निकालना है एनर्जी, मुझे निकालना है मोमेंटम, ठीक है, या मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इंस्टेड ऑफ टोटल एनर्जी आई हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट थिंग इज दैट you have to check whether this wave function is normalized or not. You have to check whether this wave function is normalized or not. So we will go through that point कि हम इस wave function को कैसे normalize करेंगे. So we have to cross check this wave function is normalized or not. If this wave function is not normalized, you may note down this point. If this wave function is not normalized, then you can't get information about these things. Whatever information you will get about the kinetic energy, total energy or momentum, those things will not be valid if the wave function is not normalized. Normalized in the sense means पार्टिकल किसी रीजन में है, इसके साथ जो वेव फंक्शन है, ठीक है, वो वेव फंक्शन हमें क्लियरली बता रहा है कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है इस रीजन में, पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है इस रीजन में वो 100% है। अब इस पार्टिकल के साथ बेटा जो एनर्जी होगी वो हम क्लियरली निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, मोमेंटम का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं होगी, मतलब कि ये वेव फंक्शन हमें बता रही है कि ये ऐसे बता रहा है हमें कि पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं होगी ये वेव फंक्शन हमारे पास जो बॉक्स है सपोज जिसकी लेंथ L है, इस बॉक्स में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की फाइंड करने की वो 100% नहीं है, वो सपोज 90% है, ठीक है, वो 90% ही है। सो इस केस में आप फिर इन चीजों का कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं बताओगे, नो क्लियर आइडिया। Yes. Any question? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में फिर लिमिट्स वैलिड। हेलो Yeah. सर, ये जो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है ना, इसमें लिमिट्स पहले ही डिसाइड करनी है ना। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में आप लोगों को बेटा कंडीशन पहले ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। आपका माइक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जाहिद, बहुत नॉइस आ रहा है। You just mute down, I will answer the question. हेलो सर, You just mute down, मैंने आपका क्वेश्चन सुना। So your question is that कि नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में आपके पास पहले ही लिमिट दिए गए होते हैं, ठीक है। ये मसला नहीं है कि सपोज आपके पास लिमिट दिए गए हैं 0 to L, ठीक है। So if the limit is 0 to L, then there is clear concept that means particle is 100% within this region. Particle is 100% within this region, but the problem is this within this wave function. So I will write down that point. Problem is within the wave function. Within wave function. So which is not well defined. अगर आपको वहां से ही लिमिट दिए गए हैं कि आपका पार्टिकल डेफिनेटली 0 to L रीजन में है, लेकिन आप जो वेव फंक्शन ले रहे हो वो वेव फंक्शन बेटा आपको इस हद तक नहीं ले पा रहा है कि तय वन्यों की पार्टिकल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 100%। मींस प्रॉब्लम तो वेव फंक्शन में ही है, फिर प्रॉब्लम इज विद इन द वेव फंक्शन। सो फॉर दैट यू हैव टू नॉर्मलाइज दिस वेव फंक्शन so that you will get 100% probability. You will get what? 100% probability. So अगर लिमिट वहां से ही दिए गए हैं आप लोगों को, ठीक है, so I will make a new diagram suppose like this.
I have a box of length L, so this length will be suppose L by 2. So what I am saying that I have some wave function psi 1 and I have suppose some wave function psi 2. यहाँ से यहाँ तक wave function psi 1 है, L by 2 से लेके L तक wave function suppose psi 2 है. तो 0 से लेके L तक जब हम इस psi और psi 1 और psi 2 को इन अकाउंट लेते हो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि particle is within this region. Particle is within this region. Suppose if I will take only psi 1, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं बता पाऊंगा कि 0 से लेके L तक आपका जो ये है पार्टिकल दैट इज 100%. आई एम नॉट श्योर. या एक कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये है कि इंस्टेड ऑफ psi 1 and psi 2, instead of psi 1 and psi 2, if I will take a single wave function psi, okay, although my limits are given, my limit is given, initial limit and final limit is given, लेकिन आपके पास जो जाहिद वेव फंक्शन होगी वो वेव फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी, नॉट वेल डिफाइंड. Means in that sense we have to first normalize this wave function. We have to first normalize this wave function and then we can say that this is the now well defined wave function. और normalize करने के बाद आपको 0 से लेके L तक 100% probability मिलनी चाहिए. So are you getting? Have you got this? Yes, sir. So we will take problems on this thing also. तो अगर यहाँ पे problem लग रही है, so we will take problems where my wave function is not normalized, although my limits are given. चाहे लिमिट 0 से लेके L तक है, चाहे लिमिट 0 से पाई तक है, या लिमिट 0 से 1 तक है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हम ले. So fourth point of this thing is that my wave function, ठीक है, इसके जो डेरिवेटिव्स है, सपोज पार्शियल psi by partial x, partial psi by partial y and partial psi by partial z, those values should be also single valued. बेटा यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा बहुत, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है फिर हमेशा बच्चों को. सो मेरे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है psi के विद रिस्पेक्ट x, y and z, ओके, दोस डेरिवेटिव्स शुड बी सिंगल वैल्यू. अब इससे पहले हमने बताया था कि psi की वैल्यू सिंगल वैल्यूड होने चाहिए. अब यहाँ से हमने कोई दूसरा मसला उठा दिया है कि हम बता रहे हैं कि आपके पास जो डेरिवेटिव्स है इस psi के वो भी सिंगल वैल्यूड होने चाहिए. अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मसला ये है कि इसके बाद तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा, because I don't know whether you have dealt with some operators in case of your modern physics or not. तो आपके पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको मैं यहाँ पे in detail discuss नहीं करूंगा, because then we are deviating from our topic. I have some sort of momentum operator. Suppose P equivalent sum minus IH cross partial by partial of x. So this is some sort of operator. If I am going to operate this operator, ठीक है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल रूल होता है. ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है? एक ऐसा मैथमेटिकल रूल जो हम किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं. ठीक है, और जब हम इसको वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं, मतलब बिकॉज if I have some dependence of this wave function on x and t, means p यहाँ पे मैं इससे पहले लगा रहा हूँ, means I have to differentiate this side with respect x. Okay, टाइम को कांस्टेंट रख के if I am going to differentiate this with respect to x, I will get some sort of p value, momentum value, और यहाँ से मेरे पास वेव फंक्शन वापस दोबारा आती है. मोमेंटम ऑपरेटर एक इन जनरल ऑपरेटर की अगर हम बात करेंगे, ये एक ऐसा मैथमेटिकल रूल होता है जो हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन ले रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में आपके पास सपोज कोई जनरल फंक्शन हो सकती है, सम f of x t या f of x y z. So if I am operating this operator on some wave function, I am getting some sort of value. ये कौन सा वैल्यू है? ये मोमेंटम का वैल्यू है. मींस कि मैं कोई मोमेंटम ऑपरेट वेव फंक्शन एस्पेक्ट मेद्रा एट द मोमेंटम वैल्यू. ठीक है, मींस ये मोमेंटम आज में इंफॉर्मेशन देवान के पार्टिकल्स उस मोमेंटम आज, उसके बाद मेरे पास वेव फंक्शन दोबारा वापस आती है. ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को हम आगे जाके नाम देंगे आइगन वैल्यू इक्वेशन. आइगन वैल्यू इक्वेशन, आई होप मैथमेटिक्स में भी आपने थोड़ा पढ़ा होगा. सो दिस आइगन वैल्यू इक्वेशन, इस केस में अगर मुझे मोमेंटम मिला और वेव फंक्शन दोबारा वापस आई, then I am calling this operator as eigen operator.
I am calling this operator as eigen operator, and this value जो भी होगा value p का, that I am calling as eigen value, that I am calling as बेटा eigen value। और आपके पास ये जो wave function होती है psi, इसको हम बोलते हैं eigen function। ठीक है, so eigen function वो function होती है जिसपे हम कोई ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं। ऑपरेटर ऑपरेट कराने के बाद हमें कुछ वैल्यू निकलता है जिसको नाम हम देते हैं आइगन वैल्यू, और हमें वेव फंक्शन दोबारा वापस आती है। अगर यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेट कराते तो यहाँ पे एनर्जी का कुछ वैल्यू होता, वेव फंक्शन वापस आती, देन आई एम कॉलिंग दैट एज एनर्जी आइगन वैल्यू। दिस वेव फंक्शन विल बी अगेन एन आइगन फंक्शन, एंड दिस ऑपरेटर विल बी आइगन ऑपरेटर। अगर मोमेंटम होगा तो मोमेंटम आइगन ऑपरेटर, अगर एनर्जी का ऑपरेटर होगा देन दैट विल बी आइगन एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, हाँ दूसरा एक पॉइंट बेटा ये है, आदिल आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। अजहर? यस सर। नफीस? जी सर। नासिर? यस सर। मजाज? तौसीफ? यासिर? यस सर। जीशान? यस सर। यस सर। ओके फाइन। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज, अभी तो मैंने इन डेरिवेटिव्स का मीनिंग नहीं समझाया, सो देयर आर सम थिंग्स रिलेटेड सो दैट वी हैव टू डिस्कस। मोमेंटम ऑपरेटर को हमने ऑपरेट कराया तो मोमेंटम का वैल्यू निकला और वेव फंक्शन वापस आई, तो ये इस वैल्यू का, इस इक्वेशन का नाम हमने दिया आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये जरूरी नहीं है कि हर दफा आप ऑपरेटर ऑपरेट कराओगे वेव फंक्शन पे तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे वेव फंक्शन दोबारा वापस आएगी। It is not necessary you are going to operate some operator on some wave function and you will get this wave function back. Suppose I will give a simple example. Suppose if I will say some d by dx of sin x, it will be cos x. Means यहाँ पे function थी sin x लेकिन cos x है यहाँ पे, तो इस हिसाब से ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है। It is not an eigen value equation. It is not an eigen value equation. ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं d by dx of e raised power 2x, so it will be simply e raised power 2x, ठीक है, and internal differentiation of 2x, that will be 2. So definitely I can call this as eigen value equation because यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास थी f of x और यहाँ पे आपको f of x दोबारा वापस मिली और यहाँ पे 2 कुछ वैल्यू निकला, means I can say this is my eigen value equation. Similarly will happen in case of wave functions. ठीक है बेटा, अब ये जो ऑपरेटर हमने लिया माइनस आई एच क्रॉस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ऐसे ही हम ऑपरेटर नहीं लेंगे, ठीक है, या इसके बाद आप एनर्जी का ऑपरेटर लोगे, टोटल एनर्जी का, दैट विल बी सम आई एच क्रॉस पार्शियल बाय पार्शियल टी। ठीक है बेटा, सो दिस पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल साई बाय पार्शियल वाई, पार्शियल साई बाय पार्शियल जेड, नाउ आई विल इन्वॉल्व वन मोर derivative, that is partial psi by partial t, because I have energy operator, in that energy operator I have IH cross and then partial by partial t, that means हम यहाँ पे इसमें partial psi by partial t भी incorporate करेंगे। ठीक है, इनके वैल्यू सिंगल, इनके वैल्यू के जो डेरिवेटिव्स है वो सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। सिंगल वैल्यूड क्यों? अब सिंगल वैल्यूड क्यों? ये मसला ये है कि क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मोमेंटम ऑपरेटर जो है, ठीक है, जब इसको मैं वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा रहा हूं, मींस ये मोमेंटम ऑपरेटर दैट इज आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसको मैं किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा रहा हूं, मतलब मींस आई एम ऑपरेटिंग मोमेंटम ऑपरेटर ऑन वेव फंक्शन। ठीक है, तो वहां पे मुझे क्या निकलेगा, मोमेंटम का सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा, मोमेंटम का एक ही वैल्यू निकलेगा और वेव फंक्शन वापस आएगी। सो दैट इज व्हाई these derivatives should be single valued. These derivatives should be single valued. तो अब इन केस मैं यहाँ पे वेव ऑपरेटर को ऑपरेटर करा रहा हूँ वेव फंक्शन पे, तो मुझे अगर यहाँ पे आइगन वैल्यू 2 निकले, चाहे मोमेंटम के है चाहे इसके बाद एनर्जी के है, उसका मतलब ये है कि मेरे पास
एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मोमेंटम या एनर्जी के दो वैल्यूज निकल रहे हैं, मोमेंटम या एनर्जी के क्या दो वैल्यूज निकल रहे हैं, ठीक है। सो दैट थिंग विल नॉट बी पॉसिबल. You can also think this thing in this situation. So some d psi upon dx या in general dy upon dx, थोड़ा बहुत यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, this dy upon dx, if you will go through the geometrical interpretation of this dy upon dx, means you have some function y equal and some f of x, ठीक है। जब आप इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग ले रहे हो, सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो आप उस फंक्शन पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जब टेंजेंट डालते हो तो बेटा आप क्या बोल रहे हो, दिस टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज सम dy upon dx. आई होप ये चीजें आपने 11th क्लास में ही पढ़ी होंगी. दैट इज नथिंग सम tan of theta. तो डेरिवेटिव ऑफ a function at a specific point is nothing but it is the slope of tangent to that curve at that point. Slope of tangent to the curve, वो tan theta के बराबर निकलता है and that is dy upon dx. और यहाँ से फिर आप ab initio मेथड के साथ भी डील कर रहे हो. सिमिलरली मैंने इसको इस चीज के साथ बेटा क्यों रिलेट किया, सपोज आपके पास कोई वेव फंक्शन है, that wave function is like this, suppose it is some psi versus x, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे इस वेव फंक्शन के को एक सिंगल टेंजेंट डालूंगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक टेंजेंट डालूंगा, ठीक है. टेंजेंट तो मैं एक ही पॉइंट पे डाल सकता हूँ, देन व्हाट आई विल गेट, ठीक है. तो यहाँ से मुझे इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, दैट विल बी सम dou psi upon dou x, partial psi by partial x. तो इस partial psi by partial x का तो एक ही वैल्यू होगा, just like dy upon dx I have some single value. Here slope has some single value. Similarly here at this point this d psi upon dx has single value. तो हमने ऊपर क्या लिखा कंडीशन में, that means IH cross minus IH cross partial by partial x, इसका सिंगल वैल्यू होना चाहिए. यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि partial psi by partial x का सिंगल वैल्यू होना चाहिए. मैंने इसको थोड़ा कंपेयर किया फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप एक होगा, एक टेंजेंट का स्लोप एक टेंजेंट असना 10 स्लोप असना 3 एक ही स्लोप होगा. अब मसला ये है कि अगर मैं इसको माइनस आई एच क्रॉस पार्शियल साई बाय पार्शियल माइनस आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो उसका भी सिंगल वैल्यू होगा. सिमिलरली अगर मैं पार्शियल साई बाय पार्शियल टी लूंगा, सो इंस्टेड ऑफ दिस साई वर्सेस टी, साई वर्सेस एक्स सॉरी, अगर मैं लूंगा साई वर्सेस टी तो मैं लिख सकता हूं पार्शियल साई बाय पार्शियल टी, उसको आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो उसका भी आपको सिंगल वैल्यू. So that is how you can tackle with this problem. You don't have more than one values for this derivative. तो उसके बाद बेटा हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है. नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लूंगा because I had to do some problems on that. If the wave function is not normalized, then how I am going to normalize that wave function, तो मैं वो separately आप डिस्कस करूंगा. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है जो आपको कभी कभार एग्जाम में भी आ सकता है या कभी कभार इंटरव्यूज में भी ये चीजें पूछे जा सकते हैं आप लोगों को, दैट इज डायमेंशंस ऑफ वेव फंक्शन. सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ वेव फंक्शन. इज माय वॉइस क्लियर? यस सर. इनायत, फैसल, औकिया, हफ्सा, हशमत, Yes sir. यस सर. नुसरत, रुकिया, यस सर. औकिया, यस सर. अनीस, ओके बेटा. डायमेंशंस ऑफ वेव फंक्शन. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ द वेव फंक्शन, तो लग रहा है कि वेव फंक्शन के क्या डायमेंशंस होंगे. डेब्रॉगली ने जो कांसेप्ट दिया था वेव फंक्शन एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है. अब मसला ये है कि उस क्वांटिटी उस वेव फंक्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वेव फंक्शन से. अब तो ये बड़ा मसला बन गया डायमेंशंस निकालने से, ठीक है. उतना मसला नहीं है. सो आई विल यूज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन.
I will use the basic concept of normalization. So if my particle is suppose here and this particle is going suppose in one dimension, ठीक है, suppose along some x axis or along some y axis or along some z axis, your choice. So suppose इसने इसका जो हम लिमिट लेते हैं suppose -infinity से +infinity ले रहा है, ठीक है. So I am writing in general integral and then psi square, ठीक है, dx equivalent to 1. मींस अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक रीजन है -infinity, सपोज यहाँ पे दूसरा रीजन है +infinity, इस रीजन में तो डेफिनेटली इस वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डेफिनेटली पार्टिकल का होना लाजमी है. Then I can say that this condition should be normalized, provided psi itself is normalized. Psi itself is normalized, ठीक है. अगर नॉर्मलाइज नहीं होगी तो नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी. टेक्निक क्या है वो हम लेटर ऑन देखेंगे. फिलहाल मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है. अगर नॉर्मलाइज नहीं होगी, जो जाहिद ने भी क्वेश्चन पूछा था, अगर नॉर्मलाइज नहीं होगी तो इसको नॉर्मलाइज करना, ठीक है. नॉर्मलाइज करने के तरीके क्या है वो हम देखेंगे. सो psi square dx is equal to 1. So probability of finding the particle within this region from -infinity to +infinity is 1. तो इस हिसाब से अगर मुझे डायमेंशंस निकालने हैं, ठीक है, किसके डायमेंशंस, वेव फंक्शन के डायमेंशंस, तो सिंपल सा आइडिया है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. दिस psi square, ठीक है, and this will be equal to some sort of 1 by dx. psi square को मैं ऐसे ही रखूंगा, dx को मैं इसके नीचे लाऊंगा. psi square is 1 by dx और dx तो लेंथ है, ठीक है. So dx I can write as length. Suppose if I have to calculate the dimension, I can simply write as L, ठीक है. मैं यहाँ पे along one axis अगर जा रहा हूँ तो मैं L लिखूंगा, ठीक है, या dx लिखूंगा. लेकिन अगर 2 dimensions होंगे तो मैं लिखूंगा dx dy. So what I will write, in order to have a simple sense, I can write it as 1 by L because dx is nothing, it is length. So I can use that ideology, it is simply length. और आपके पास जो यहाँ पे simply अब psi के जो dimensions होंगे, ठीक है, that will be 1 by √L. So this is nothing but these are the dimensions of this wave function in one dimension. So one dimension में अगर आपके पास अब आज के बाद कोई पूछेगा कि psi के dimensions क्या होंगे, it is nothing but it is 1 by √of length. Okay beta. Similarly, if I will take 2 dimensions, that means psi square, it will be now dx dy equivalent to 1. dx dy equivalent to 1. Okay, 1 second please. Walaikum salam. Paga. Okay beta. So in case of 2 dimensions, I am saying that if I will try to write the equation of probability of finding the particle, that is psi square dx dy equivalent to 1. तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ psi square that is equivalent to 1 by dx dy. डायमेंशंस निकालने होंगे तो dx को रिप्लेस करो L से, ठीक है, because it is again length, dy is again length, so it will be L square. It will be L square. तो आपके पास जो वेव फंक्शन के डायमेंशंस होंगे, ठीक है, 2 डायमेंशंस में स्क्वायर और ये स्क्वायर कटेगा, that is simply 1 by L. That is L inverse. ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास बनेगा it is L raised to power -1 by 2. ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपके डायमेंशंस क्या बनेंगे, L inverse. Now I hope कि आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा how you can calculate this in 3D. So it is integral of psi square dx dy dz, that is 1, or you can write psi square will be 1 by dx dy dz. So you can write it as 1 by L cube. So it is L L L, so that's L cube. तो आपके पास psi जो होगा that will be 1 by L raised to power 3 by 2, or you can write L raised to power -3 by 2. So these are the dimensions of your wave function in 3 dimensions. Now इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? We will try to check the concept of normalization of some functions because now time is over and I have to go to the department. इसके बाद हम normalization का concept उठाएंगे.
उसके बाद डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम्स और देन शॉर्ट इक्वेशन. Okay, fine. Any question? Hashmat, Yes, sir. are you all satisfied with online classes? सर लगभग 10 स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन चाहते हैं सर, बाकी ऑनलाइन. Only 10 students. Yes, sir. Okay, so you just take care, beta. Because if your exams are going to be offline, internal as well as external, then take care. So it is my suggestion from you